السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منبر و محراب فاؤنڈیشن جو ہندوستان کے مختلف ائمہ اور علماء کا نمائندہ ادارہ ہے، جس سے ملک کے تقریباً 10,000 ائمہ اور خطباء جڑے ہوئے ہیں، جن کے لیے منبر و محراب فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر چہارشنبے کو جمعے کے خطابات تیار کر کے، مضامین تیار کر کے بھیجے جاتے ہیں جو ملک کے حالات کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ منبر و محراب فاؤنڈیشن نے دسمبر 2020 میں شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں کے حالات کا جائزہ لیا۔ بے دینی، جہالت، جس کا اندازہ لگایا گیا اور اس کے بعد یہ ڈیسیشن لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ نوجوان لڑکیوں کی بے راروی کو دور کرنے اور مسلم خواتین کو دین سے مربوط رکھنے اور ان کے اندر ایمانی جذبہ پیدا رکھنے کے لیے کچھ مکاتب مراکز نسوان کے نام سے قائم کیا ہے۔ الحمدللہ منبر و محراب فاؤنڈیشن نے مراکز نسوان کا آغاز 1 جنوری سے کیا۔ آج 12 فروری ہے، تقریباً 42 دن ہو چکے ہیں عملی طور پر مراکز نسوان کے قائم کرنے کے سلسلے میں، اور 44 مکاتب آج تک الحمدللہ قائم ہو چکے ہیں، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ مکتب کہاں قائم ہوا ہے، اس کے اسپانسر کون ہیں، وہاں کے مقامی ذمہ دار کون ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ شہر حیدرآباد کو ہم نے فی وقت 10 زون میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک زون میں تقریباً ہم 10 مکاتب قائم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اب تک 4 زون ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ زون حافظ بابا نگر، زون شاہین نگر، زون کشن باغ، اور اسی طرح مولا علی اور سکندرآباد وغیرہ کے زون، اور اسی طرح متفرقات بھی۔ ہر مکتب کا نمبر دیا گیا ہے۔ مکتب نمبر 1، اس کے اسپانسر تلاش کیے گئے، الحمدللہ اسپانسر لیے گئے ہیں، ان کا نام بھی اس میں رہے گا۔ معلمات کون ہیں؟ عموماً ایسی معلمات کو رکھا گیا ہے جو عالمہ ہیں، جو تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھا سکیں اور درس قرآن دے سکیں، ان خواتین کو سیرت کا سبق دے سکیں، مسائل سمجھا سکیں، ان کے اندر دینی بیداری لا سکیں، ان کی تربیت کر سکیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ایک نظام الحمدللہ رکھا گیا ہے۔ یہ مکتب نمبر 1 پہلا مکتب، ہم اس کی تھوڑا سا تشریح بھی کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں ہمارے مکاتب قائم ہیں۔ مکتب نمبر 1 سلیمان نگر میر محمود پہاڑی، مکتب نمبر 2 وادی شمس میر محمود پہاڑی، مکتب نمبر 3 خانقاہ یعقوبیہ میر محمود پہاڑی، مکتب نمبر 4 عباد نگر میر محمود پہاڑی، مکتب نمبر 5 سکھ چونی کشن باغ، مکتب نمبر 6 بھوپیش گپتا نگر باغ، مکتب نمبر 7 بھوپیش گپتا نگر کرمن گھاٹ الف، مکتب نمبر 8 حافظ بابا نگر بی بلاک، مکتب نمبر 9 حافظ بابا نگر سی بلاک با، مکتب نمبر 10 سلیمان نگر اے میر محمود پہاڑی، مکتب نمبر 12 حافظ بابا نگر اے بلاک با، مکتب نمبر 13 حافظ بابا نگر اے بلاک جیم، مکتب نمبر 14 حافظ بابا نگر او بلاک الف، مکتب نمبر 15 ریاست نگر الف، مکتب نمبر 16 ریاست نگر با، مکتب نمبر 17 یوسفین کالونی چندن گٹا، مکتب نمبر 18 سی بلاک حافظ بابا نگر الف، مکتب نمبر 19 چتن بیٹ الف، مکتب نمبر 20 وادی سلیمان کشن باغ، مکتب نمبر 21 لنگر ہاؤس، مکتب نمبر 22 سن سٹی، مکتب نمبر 23 سبحان پورہ آغاپورہ، مکتب نمبر 24 خواجہ نگر اتاپور، مکتب نمبر 25 محمد نگر بندہ گڑا، مکتب نمبر 26 سعادت نگر بندہ گڑا، مکتب نمبر 27 مسجد عائشہ غوث نگر، مکتب نمبر 28 بسم اللہ کالونی شاہی نگر، مکتب نمبر 29 پہاڑی شریف آجودادی نگر، مکتب نمبر 30 سلطان نگر ارشاد البنا ہیراگڈا، مکتب نمبر 31 وارث گڑا سرینیواس کالونی، مکتب نمبر 32 نظم مسجد زمزم بیکری شاہی نگر، مکتب نمبر 33 ریاست نگر جین، مکتب نمبر 34 غازی ملت کالونی فلک نما، مکتب نمبر 35 سی بلاک بابا نگر جین، مکتب نمبر 36 سلیمان نگر سی میر محمود پہاڑی، مکتب نمبر 37 نظم مسجد نور کالونی کشن باغ، مکتب نمبر 38 واحد نگر قدیم ملک پیٹ، مکتب نمبر
39 साई बाबा नगर कापरा, मकतब नंबर 40 हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक दाल, मकतब नंबर 41 नज़्म मस्जिद खलीक किशनबाग, मकतब नंबर 42 वादी मुस्तफा मस्जिद मुनीर, मकतब नंबर 43 भूपेश गुप्ता नगर करमन घाट चीन, मकतब नंबर 44 एर्राकुंटा अल फलाह मस्जिद। कुल 44 सेंटर्स अल्हम्दुलिल्लाह कायम हो चुके हैं, जिसकी पूरी तफसील है। इन तमाम के फ़ोन नंबरात हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ की मालूमात मुकर्रर हो चुकी है, यहाँ के मकामी जिम्मेदार, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जोन के लिए कोऑर्डिनेटर को मुकर्रर किया गया है, जो हर रोज उन मकामी तौर पर वहाँ की तफसीलात ला सकें। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जोन्स में हर रोज हाजिरी हो रही है। इसके लिए एक निज़ाम बनाया गया है, रोजाना हाजिरी रजिस्टर होगा और उसमें हाजिरी दी जाएगी, और ये हाजिरी रोजाना जब ली जाएगी तो हर जोन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप मालूमात के बनाए गए हैं। हर मालूमात की जिम्मेदारी होगी कि अपने रोजाना के हाजिरी जो हो रही है तालिबात और खवातीन आई हैं, उनकी हाजिरी क्या एक पिक्चर उस ग्रुप में डाल दें, ताकि मेंबर मेहराब को पता चले कि रोजाना उस सेंटर में कितनी खवातीन आ रही हैं, कितनी पाबंदी के साथ आ रही हैं, कितनी गैर हाजिर है। और इसके लिए दाखिला फॉर्म रखा गया है। मरकज़ निस्वान के लिए दाखिला फॉर्म होगा, इसके साथ ID प्रूफ होंगे, जिसकी बाकायदा फाइल तैयार की गई है। वहाँ पर अवेयरनेस पैदा करने के लिए पैम्फलेट भी तैयार किए गए हैं, ताकि खवातीन और तालिबात को वहाँ सेंटर्स पर जमा किया जा सके। इसके लिए एक निसाब मुकर्रर किया गया है। ये 2 साल मुस्लिमात कोर्स रहेगा। 2 साल के बाद इन पाबंदी से आने वाली खवातीन को जो इम्तिहान देंगी इसका मुकम्मल, उनको सर्टिफिकेट भी मेंबर मेहराब की जानिब से मुस्लिमात कोर्स की दी जाएगी। और आम फहम दरस कुरान रोजाना इसका निसाब रहेगा, एक सबक इसका पढ़ा जाएगा। जो आम फहम है दरस कुरान, इसमें रोजाना का एक दर्स जो 2 आयत या 1 आयत या 3 आयत पर मुश्तमिल होगा। नबी करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मबनी एक किताब अख्तर की लिखी हुई आम फहम सीरत रसूल रहमत, इसका भी एक सबक यहाँ पढ़ाया जाएगा। उसमें सवाल जवाब किए जाएंगे, इसको लिखाया जाएगा, इसकी मशक कराई जाएगी। आखिर की किताब है चराग़ दीनियात। चराग़ दीनियात मसाइल पर मुश्तमिल है। रोजाना एक सबक इसका दिया जाएगा। वज़ू, नमाज, तयम्मुम, गुस्ल वगैरह के तरीके वगैरह बुनियादी मालूमात दी जाएंगी। इसके अलावा नूरानी क़ायदा भी रखा गया है, नाज़िरा कुरान रखा गया है, तजवीज़ के साथ नूरानी क़ायदा और नाज़िरा कुरान पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अमली मश्क कराई जाएगी नमाज वगैरह की, और इसी तरह अदइया हैं, दुआएं हैं, सुबह शाम की सुन्नतें हैं, आदाब हैं, और अज़कार नमाज हैं। सारी चीज़ें इंशाअल्लाह इसको सिखाई जाएंगी। हर महीना एक तरगीबी प्रोग्राम होगा, जिस महीने में हर सेंटर के लिए 1000 रुपये मालियती इनामात दिए जाएंगे। जो पाबंदी के साथ आने वाली खवातीन और तालिबात और अच्छा पढ़ने वाली खवातीन को इनामात दिए जाएंगे, उसका एक बाकायदा निज़ाम बनाया गया है। हर 3 महीने में स्पॉन्सर को अल्हम्दुलिल्लाह हम रिपोर्ट देंगे। माशाल्लाह से हमारे जो सिर्फ 40 दिन में 44 हमारे सेंटर्स अल्हम्दुलिल्लाह कायम हो चुके हैं, और प्रैक्टिकल तौर पर अमलन शुरू हो चुके हैं, जिसकी रोजाना की हाजिरी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आ रही है। और स्पॉन्सर को हम हर 3 महीने में इंशाल्लाह रिपोर्ट देते रहेंगे। और माशाल्लाह इसके लिए 7000 रुपये हम स्पॉन्सर रखे हुए हैं। 4000 रुपये मुआलिमा को हर महीना तनख्वाह दी जाएगी, और जिसमें से तरगीबी इनामात के लिए 1000 रुपये रखे गए हैं, और कुछ मेंटेनेंस के लिए 1000 रुपये, और बाकी जो जोन के कोऑर्डिनेटर रहते हैं उनके लिए भी तनख्वाह देना होता है, और दीगर अखराजात जो होते हैं ऑफिस के, उन तमाम को सामने रखते हुए कैलकुलेशन किया गया, और पर सेंटर 7000 रुपये के इसके अखराजात चुके हैं। इसलिए हम स्पॉन्सर तलाश कर रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि हम 100 मकातिब शहर हैदराबाद में कायम किए जाए। हैदराबाद के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, और मुस्तकिल इस निज़ाम के तहत अपने अपने इलाकों में सेंटर्स कायम करने की कोशिशें की जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीराबाद में ADS MT कॉलोनी ज़हीराबाद, फैयाज नगर, आलिया नगर, इन 3 मकामात पर जैसा कि बोर्ड है बनाया जा रहा है, और वहाँ पर 3 सेंटर कायम हो चुके हैं। और मुफ्ती इरफान साहब के तहत में कामारेड्डी में 5 सेंटर्स कायम हो चुके हैं, करीमनगर में 2, और निर्मल में 4, और करनूल में 4 सेंटर्स अल्हम्दुलिल्लाह कायम किए जा रहे हैं। ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, और मिंबर और मेहराब फाउंडेशन का मकसद यही है कि खवातीन में
तालिबात में, नौजवान लड़कियों में दीन आए, उनके अंदर ईमानी कैफियत पैदा हो, अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो और इस्लामी तरीके से ज़िंदगी गुजारने की सलाहियत उनके अंदर पैदा हो, ये कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह की जा रही हैं। जैसा कि ये बात कही गई कि मिंबर मेहराब फाउंडेशन से जो मराकिज़ निस्वान कायम किए गए हैं, हर महीना एक तरगीबी प्रोग्राम होगा। इस तरगीबी प्रोग्राम में पाबंदी के साथ आने वाली ख़वातीन और अच्छी तरह पढ़ने वाली, होमवर्क करने वाली और अच्छी तरह याद करने वाली जो ख़वातीन होती हैं, उनके लिए हमने तरगीबी प्रोग्राम के तौर पर कुछ गिफ्ट तैयार किए हुए हैं। हर महीना इंशाल्लाह इनको गिफ्ट दिए जाएंगे। जैसे कि आप देखें, बेड कवर्स हैं, कप के सेट्स हैं और इसी तरीके से ये मुख्तलिफ अशिया हैं। मराकिज़ निस्वान में जो तालिबात पाबंदी के साथ आ रही हैं और जो अव्वल, दुवम और सुवम नंबरात से कामयाब होंगी, हर माह जो माहाना इम्तिहान होगा उसमें तरगीबी प्रोग्राम के जरिए इनको ये गिफ्ट दिए जाएंगे। घरेलू ज़रूरी अशिया का एक स्टॉक मिंबर मेहराब के दफ्तर में रखा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारी अशिया हैं और ये बतौर इनाम गिफ्ट पैक करके इनको हर माह दिए जाएंगे। हर मकतब के लिए हर माह 1000 से 1500 तक की इनके इनामात दिए जाएंगे और उसमें 2-3 कैटेगरी बना रहे हैं और इस तरह 47 सेंटर्स पर तकरीबन माहाना 60,000 रुपये के तरगीबी इनामात होंगे जो दिए जाएंगे। इसमें मुख्तलिफ किस्म के बेड कवर्स है, नाइटीज़ है और सारी चीज़ें, कप वगैरह, ग्लासेस के सेट। मराकिज़ निस्वान में तालीम हासिल करने वाली तालिबात के लिए भी स्काफ रखा गया है। इंशाल्लाह इसका निज़ाम भी अनकरीब शुरू होने वाला है ताकि तमाम तालिबात इस स्काफ के साथ मकतब में हाजिर हों। हर सेंटर की तफसीलात यहाँ ऑफिस में रखी गई है। मिंबर मेहराब फाउंडेशन का ऑफिस है। मराकिज़ निस्वान की पूरी फाइल्स यहाँ पर तैयार है। हर सेंटर में कितनी तालिबात तालीम हासिल कर रही हैं उनका पूरा डाटा इसमें मौजूद है। आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये मकतब नंबर 3 है जो किशन बाग मीर महमूद पहाड़ी का है। इस मरकज़ में कितनी तालिबात तालीम हासिल कर रही हैं, मरकज़ नंबर 3 जोन मीर महमूद पहाड़ी, इनका आधार कार्ड और इनका दाखिला फॉर्म। इस तरह एक एक सेंटर में कितनी कितनी तालिबात तालीम हासिल कर रही हैं उसका पूरा डाटा यहाँ पर मिलेगा। इसको फिर कंप्यूटराइज भी किया जा रहा है। उमूमन हर सेंटर में 25 से 30 ख़वातीन, अब बात जगह कुछ ज़्यादा भी हैं, बात जगह कहीं कम भी हैं, 20 की तादाद से कम ना हो और 35 तक तकरीबन रहें। ये हमारा अपना कानून बनाया हुआ कानून है और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में तालिबात और ख़वातीन दीनी तालीम हासिल कर रही हैं। मिंबर मेहराब फाउंडेशन के तहत जो मराकिज़ निस्वान कायम किए गए हैं, नौजवान तालिबात और ख़वातीन को दीन इस्लाम से मजबूत रखने और उनके अंदर ईमानी जज्बात पैदा करने के लिए इस सिलसिले में हम साहिब सरवत अफराद से दरख्वास्त करते हैं कि एक एक सेंटर का स्पॉन्सर लें। स्पॉन्सरशिप इसकी माहाना 7,000 रुपये है, जिसे मुअल्लिमा की तनख्वाह, मेंटेनेंस और गिफ्ट जो तालिबात को दिए जाएंगे वो, और सारे दीगर जो कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं उनकी तनख्वाह वगैरह। एक सेंटर पर 7,000 रुपये पर मंथ अखराजात आ रहे हैं।
ایک علاقے اور چھوٹی بستی کے اندر دین بیداری کے لیے ایک اہم مہم ہے. ہم درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ آپ ایک ایک سینٹر کا اپنی اپنی فیملی کی جانب سے ذمہ داری لیں.